السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. الحمدللہ آج ہماری کلاس قرآن کی پہلی کلاس ہے، اور ویسے ہماری بیچ کی آج دوسری کلاس ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سفر کو بہت آسان فرما دے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے لیے بہت آسانیاں، ہمارے لیے ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا کرے، آمین یا رب العالمین۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن سے۔ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہی رکوع ہے۔ تو قرآن کے اندر اس کا جو سورہ فاتحہ کا جو نمبر ہے قرآن کے اندر، اس کا وہ پہلا نمبر ہے، پہلے نمبر پر ہے سورہ فاتحہ، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا پہلا نمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نزول ایک ہوتا ہے قرآن کے اندر سیکوینس، اور ایک ہوتا ہے جو نزول کے اعتبار سے کسی سورہ کا نمبر، کہ وہ نزول، اس کا نزول کون سے نمبر پر ہوا۔ تو پہلے نمبر پر قرآن کے اندر اس کا جو نمبر ہے وہ پہلا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہم اس کے لفظی ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ بسمی، بسمی در حقیقت آپ کو سب سے پہلے میں روٹ ورڈز بتاؤں گی کہ یہ در حقیقت روٹ ورڈز ہوتا کیا ہے۔ روٹ ورڈز در حقیقت وہ ورڈز ہوتے ہیں جن سے، وہ لیٹرز ہوتے ہیں جن سے یہ ورڈ بنا ہوتا ہے، یعنی وہ ورڈ آپ کا اس ورڈ سے، ان لیٹرز سے ملا کر بہت سارے ورڈز آگے ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اور یہ ورڈز کی رد و بدل سے یہ لفظ ہمارے پاس جو سامنے موجود ہوتا ہے اس سے وہ بنتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا، یہ جو پہلا لفظ ہے یہ بسمی ہے۔ بسمی در حقیقت جو لفظ تھا، یہ با جو ہے یہ حرف جار ہے۔ حرف جار کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دیتا ہے، اس کو حرف جار بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ با جو ہے یہ ہمیشہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر ہی دیتا ہے۔ یہاں پر در حقیقت یہ جو لفظ تھا یہ سین واو اور میم تھا، سین واو اور میم، ٹھیک ہے۔ واو اس کے اندر سے غائب ہوا ہے، واو اس کے اندر سے غائب ہوا ہے، یہ ورڈ بن گیا بسمی۔ با نے اس لفظ کو زیر دیا، بسمی بن گیا، اس کا روٹ ورڈ ہوا سین میم اور واو۔ اللہ، اللہ کے، بسم اللہ، ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے، بسمی ساتھ نام اللہ، اللہ تعالیٰ کے۔ الرحمانی، جو بہت مہربان، الرحیمی، جو بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسمی ساتھ نام کی، اللہ اللہ تعالیٰ کی، الرحمانی جو رحمان، اور الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لفظ جلالہ کو دیکھیں، لفظ بسمی کو دیکھیں۔ بسمی مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ میں آپ لوگ کو انمیوٹ کر رہی ہوں، ہینڈ ریز کیجیے گا پلیز، آپ لوگ پلیز کوآپریٹ کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ اپنے مائکس کو میوٹ رکھیں گے تو کام آسانی سے ہوگا۔ جی، بسمی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ جی نورین، یہ حرف ہے۔ حرف کیوں ہے؟ بسمی کہاں سے حرف ہے؟ حرف تو با ہے، حرف نو تو نو، پیچھے یہ با ہے، اسم ہے۔ یہ اسم ہے، کیونکہ یس، جو اس حرف جار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ آتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے۔ اللہ، لفظ یہ اسم جلالہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اس میں جلالہ، جی اللہ کیونکہ اسم ہے۔ اسم ہے۔ الرحمانی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے۔ اسم ہے۔ اچھا جی، عظما آپ یس، بتائیے گا، عظما، عظما آپ بتائیے گا، الرحمن اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ ہے؟ عظما خان، مائک انمیوٹ کیجیے گا پلیز۔ صبا سرور آپ بتائیے گا۔ اس میں معرف ہے کیونکہ یس، الف لام ساتھ آ گیا۔ کیونکہ الف لام ساتھ میں۔ پلیز باقی سب اپنے مائکس کو میوٹ کیجیے گا، پلیز اپنے مائکس میوٹ کیجیے۔
इसमें मारफा है। अगर ये इसमें नकरा होता तो क्या होता? फिर इस पे तनवीन आती लास्ट में। तो क्या बनता वर्ड? रहमानिन। रहमानिन नहीं, रहमानुन। अच्छा सॉरी, यहाँ पर यस। जेर लगा है, ठीक है, आपने उसको देख के पढ़ा है, रहमानिन, ठीक है। और रहमानु, और ये इसमें मारफा है। और रहीमु, जी उज़मा, और रहीम इसमें नकरा है, इसमें जी, मारफा है। इसे मारफा है क्योंकि अलिफ लाम शुरू में है। जी, इसका मतलब है आप अल्हम्दुलिल्लाह पहचान गए हैं कि इसमें मारफा को पहचानने का आसान तरीन तरीका और इसम को पहचानने का सबसे पहला तरीका, अगर इसमें नकरा है तो उसके आखिर में तनवीन होगी लास्ट लेटर पर। अगर तनवीन नहीं है तो अलिफ लाम होगा, और अगर अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम आने के बाद अपने आगे से तनवीन को गिरा देता है। हरकत जो होती है वो सिंगल हो जाती है। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जेर जेर यहाँ पर क्यों आई है, क्या वजह थी कि यहाँ पर जेर आई है। अल्हम्दु, हा मीम दाल रूट वर्ड है इसका। अल्हम्दु तमाम की तमाम तारीफें। अल्हम्दु इसमें नकरा है, मारफा है? इसे तो मारफा है। मार्फा मार्फा इसम मारफा है, मार्फा। ठीक है जी। लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं। लिल्लाही, लिल्लाही के अंदर हर्फ जार कहाँ पर है? कोई एक बताएगा। लाम जो है वो हरफ जार है। जी हाँ, ये जो लाम है इसने लफ्ज जलाला के नीचे जेर दी, ठीक है, इसकी वजह से। अदरवाइज हर इसम पेश की हालत में होता है, लफ्ज जलाला के नीचे जेर इस्लाम हरफ जारा की वजह से आया है। और रब्बी, जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का, अल आलमीन तमाम जहानों का। रब्बी इसम है, फेल है? इसका रूट वर्ड रा बा इसम बा है। है, इसम है। इसका इसम रूट है। वर्ड रा बा बा है, ठीक है, याद रखिएगा। हर इसम और हर फेल हमेशा 3 लेटर्स पर होता है। कोई भी इसम, कोई भी फेल 3 लेटर्स से कम नहीं होता। याद रखिएगा, हर हर इसम और हर फेल 3 लेटर्स पर होता है। अल आलमीन भी इसम है और इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, और अलिफ लाम बता रहा है कि ये इसमें मारफा है। अल्हम्दु तमाम तारीफें लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं। लाम का मानी हुआ लिए, और अल्लाही लफ्ज जलाला का मानी अल्लाह ही हुआ। लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए हैं। रब्बी, जो रब है, अल आलमीन तमाम जहानों का, यानी सिर्फ एक दुनिया का नहीं बल्कि बहुत और भी बहुत से जहान हैं। यानी इस कायनात के अलावा ये जो हमारी ज़मीन है, इसके अलावा भी अल्लाह ताला के बहुत से जहान हैं। इसलिए हम कहेंगे कि तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानी, जो बहुत मेहरबान है। इसमें मारफा है क्योंकि अलिफ लाम लगा है इसके साथ, इसलिए इसमें मारफा है। इसमें नकरा होता तो इसके आखिर में तनवीन होती। अर्रहीमी, जो निहायत रहम करने वाला है। मालिकी, उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मालिक। मालिक होना, किसी चीज का मालिक होना, ये वही लफ्ज है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। मालिकी मालिक है। यौमी, हम उर्दू में भी यौम का दिन, दिन का लफ्ज इस्तेमाल यौम करते हैं ना। तो यौम दीन, यौमी दिन का, अद्दीनी जजा के दिन का, बदले के दिन का। यौमी दिन, और अद्दीन बदले के दिन का। यौम भी इसके अंदर इसम है और अद्दीन भी इसके अंदर इसम है। मालिकी मालिक है, यौम दीन जजा के दिन का। देखिए ये भी इसम, ये भी इसम, और ये भी इसम। यानी कि अभी तक हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी पढ़ा है ये सारे के सारे इसम ही पढ़े हैं अभी तक हमने, ठीक है। ईया का, यहाँ पे हमें कैसे पता लगा कि ये इसम है? अभी आपको आपको नजर आ रहा होगा कि इसके नीचे जेर है लेकिन इसके और वो तनवीन नहीं है और अलिफ लाम भी नहीं है। वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं है इसके साथ तनवीन, ठीक है। लेकिन आप इसको यहाँ से पहचान लीजिएगा फौरन कि ये इसम है, क्योंकि फेल के साथ कभी भी जेर नहीं आती। फेल फेल हमेशा अपने साथ जबर लाता है, उसके साथ जबर होती है लेकिन उसके साथ जेर नहीं होती है। यहाँ पर जेर है तो यकीनन ये आपका इसम है, नकरा वो ये आपका फेल नहीं हो सकता। ईया का, सिर्फ तेरी ही। ईया का, का मतलब होता है तेरी का। जहां पर भी आपको का नजर आएगा, का मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तेरी। ईया का, अगर मोनस होती तो ईया की होता। ईया का, जैसे आप कहते हैं ना जजाकल्ला, जजाकल्ला मर्द के लिए होता है, औरत के लिए होगा तो जजाकिल्ला होगा। यानी कि एक जेर जो है वो मोनस को जाहिर करती है और जबर जो है वो मुजक्कर को जाहिर करता है। तो ईया का, आप अल्लाह ताला के लिए बात कर रहे हैं तो ईया का सिर्फ तेरी ही, यानी कि सिर्फ तेरी ही। का मानी हमें फौरन बता रहा है कि लफ्ज जलाला की बात हो रही है। अगर आप इसको जेर पढ़ेंगे तो इसका मानी तो वही रहेगा, तेरी ही होगा, लेकिन वो दर हकीकत मुजक्कर के बजाय मुअन्नस बन जाएगा।
इय्याका सिर्फ तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं। ये जो शुरू में आपको नून नजर आ रहा है ना, ये जो नून है, जहां पर भी आप शुरू में नून को पढ़ेंगे, जहां पर भी आप कहीं पर भी नून को शुरू में देखेंगे, तो हमेशा आपने नून का मानी हम करना है। नून को जब भी आप शुरू में देखेंगे तो आप उसका मानी हम करेंगे। ये आपका इसम है? नहीं, इसम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तनवीन नहीं है। और इसम क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि इसके साथ अलिफ लाम भी नहीं है। इट मीन्स, अच्छा, अगर हम इसको देखें, ये हर्फ है, हर्फ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर्फ के बाद आपका इसम का होना लाजमी है। ये इसम भी नहीं है और ये हर्फ भी नहीं है, तो एक ही चीज बाकी रहेगी, वो है फेल की। इट मीन्स कि ये आपका फेल है, नाबुदू। और ये नून जो है शुरू में हमेशा फेल के शुरू में आता है। नाबुदू हम इबादत करते हैं, इय्या का और सिर्फ तुझ ही से। फिर आप देखें कि फिर शुरू में आया नून, फिर शुरू में नून आया। नून का शुरू में आना का काम क्या मतलब होता है? कौन बताएगा जल्दी से? जी हाजरा जी। हम। हम। नून शुरू में आया तो नून के शुरू में आने का मतलब हो गया हम। नस्ताइन, इसका रूट वर्ड होगा आइन वाव और नून। नस्ताइन, हम इस्तेआनत करते हैं, यानी कि हम तुझी से मदद चाहते हैं, हम मदद मांगते हैं, चाहते हैं। नाबुदू हम इबादत करते हैं, इया का सिर्फ तुझी से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं। ठीक है। इहदिना, इहदिना हदायत दे ना हमें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ना है, लेकिन ना जो है वो शुरू में नहीं है बल्कि ना आखिर में है। ये भी आपका फेल है। अब फेल जो है वो दो तरह के होते हैं। एक मैं आपको बताना चाहूंगी, एक मैंने आपको शायद कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि फेल जो होते हैं वो दो तरह के अरबी में इस्तेमाल होते हैं। एक होता है फेल मादी माजी, और एक होता है फेल मुजारे। फेल मुजारे को मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगी, बहुत ही आसान तरीन बात है, मुश्किल नहीं है। माजी हम सब जानते हैं वो पास्ट है, और मुजारे जो होता है उसके अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि उसके अंदर फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों आते हैं। मुजारे को पहचानने का तरीका क्या होता है? अब आपको फेल को पहचानना अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया कि फेल क्या होता है। मुजारे को पहचानने का तरीका क्या है कि उसके शुरू में, फेल के शुरू में आतईन यानी कि आपका या तो फिर हम अलिफ यानी कि हमजा आएगा, या फिर ता आएगा, या फिर या आएगा, या फिर नून आएगा। इनमें से कोई एक लेटर आएगा। फिर से मैं बताना चाहूंगी कि फेल मुजारे के शुरू में, उसके शुरू में आपका या तो फिर हमजा होगा, या फिर ता होगा, या फिर या होगा, या फिर नून होगा। इसको बोलते हैं आतईन। इसको 3 दफा जरूर पढ़िएगा, आतईन 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 आतईन। ये लफ्ज जो है, आतईन का लफ्ज जो है, ये आपका फेल मुजारे के शुरू में आता है। आतईन यानी फेल मुजारे जहां पर होगा उसके शुरू में आतईन का लफ्ज आएगा। आतईन में से कोई एक लेटर आएगा। अब आप मुझे यहाँ पर बताइएगा, नाबुदू, नाबुदू, सॉरी ये वाव नहीं है, सॉरी, इसका वाव का मतलब होता है और, कि वाव मैंने नहीं देखा, माजरत खाऊं। वाइया का और सिर्फ तुझी से, वाइया का और सिर्फ तेरी ही नस्ताइन हम, वाइया का और सिर्फ तुझी से नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। अच्छा जी, ये नाबुदू आपको मैंने अभी बताया, आतईन का लफ्ज जो है वो आता है फेल मुजारे के शुरू में। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये आइन बा और दाल असल वर्ड है, और उसके शुरू में आप देख रहे हैं कि नून है। आप लोग देख रहे हैं इसके शुरू में नून है, और जो नून है वो किसकी इलामत होता है? नून किसकी इलामत होता है? जी महविश कामरान, महविश कामरान आप मुझे बताइएगा कि जो नून है, ये नून किसकी इलामत होता है? जब फेल के शुरू में आता है तो किसकी इलामत होता है? मैं ये भी जब जो बताया हाथई, उसका नून हम्म, आ रहा है। हाँ जी, उसका नून आ मुजारे रहा का। है, मुजारे का। जी। शाबाश, इसका मतलब है ये फेल मुजारे है। या तो फिर फिर इसका मुजारे तर्जुमा में। हम, या तो फिर इसका तर्जुमा अब हम इसका, या तो फिर तर्जुमा हम पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में करेंगे, या फिर फ्यूचर में करेंगे। नाबुदू हम इबादत करते हैं, वइया का और सिर्फ तुझी से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। इहदिना, अब इसके अंदर आपके अंदर शुरू में से आतईन का कोई लफ्ज नहीं है, ना आखिर में आ गया। इसका मतलब ये है कि आपका इहदिना दिखा हमें, अस्सिरात, अस्सिरात क्या है? इहदिना इसम है या फेल है? इहदिना इसम है या फेल है? अब आप लोग म्यूट हैं, आप लोग क्या जवाब देंगे इसका? इहदिना जो है ये फेल है। इहदिना दिखा हमें,
الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، یعنی کہ ہمیں دکھا، ہدایت دے ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، یہاں پر بھی صراط استعمال ہوا، یہاں پر بھی اس کا معنی راستہ ہے، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے راستہ، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت، 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 اس کا روٹ ورڈ جو ہے نون آئین اور میم ہے، انعمت، یعنی کہ نون آئین اور میم سے یہ ورڈ بنا ہے، یہ الف زائدہ ہے، اور یہ جو تا ہے، اس تا کا معنی، یہ جو تا پر جب بھی آپ زبر دیکھتے ہیں، زبر، جب بھی آپ تا پر زبر دیکھتے ہیں، اس تا کا معنی ہوتا ہے تو، تم، زبر ہوگا تو آپ کا معنی ہوگا تم مذکر، اور زیر ہوگا تو معنی ہوگا مؤنث، انعمتا انعام کیا، تا تو نے، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیری نہ، المغضوبی نہ غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین، اس کا روٹ ورڈ ہے ضاد لام اور لام، آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ لام کے ساتھ لام کے اوپر تشدید ہے، اٹ مینس کہ یہ دو لام ہیں، تو اس کا روٹ ورڈ ضاد لام لام ہے، اس ضاد کے اوپر تشدید اس لیے آئی ہے کہ ہمیں اس ضاد کو اس لام سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ولضالین، آپ کو اس سے ملانا ہے، کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ بیچ میں الف آ گیا، لام آ گیا، اب ہم اس کو کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ ہم اس کو جب بھی حمزۃ الوصل آتا ہے تو ہم اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر تشدید ڈالی اور اس کو اس سے ملا دیا، اور یہ لام کی تشدید بتا رہی ہے کہ یہ آپ کا دو لام ہیں، ضاد لام اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر سے ایک دفعہ اس کو دیکھتے ہیں، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیری نہ، المغضوبی غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین وہ گمراہ ہوئے،